प्रोपेगेंडा ऑफ चिल्ड्रन। यू वांट मी टू सिट डाउन? यू वांट टू से ऑन रिकॉर्ड? आप बोलेंगे, जवाब नहीं दे पाओगे, बैठो खामोश तुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब वह बोलते हैं पार्लियामेंट में और गरजते हैं अपने दमदार अंदाज में, वह बयान देते हैं तो क्या विपक्ष और क्या ओपोजिशन, सारे के सारे नेता दम बखुद रह जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खुद भी सदर हैं, बेबाक आवाज़ है, उनको पार्लियामेंट में बेहतरीन मुकर्रर के तौर पर अवार्ड भी दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि वो मुसलमान हो, दलित हो, मजलूम हो, हिंदू भाई हो, जो भी हो, जिसके साथ जुल्म होता है, ज्यादती होती है, उनके हक में आवाज़ उठाते हैं। पर वो मशहूर और मारूफ हैं। अपने जब वो बोलते हैं तो उनके दुश्मन भी उनको ताकते कानों से सुनते हैं और उनकी आवाज़ दिल में घर कर जाती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज एजुकेशन के मुतालिक बयान दिया है पार्लियामेंट में, जिनके बयान पर खुद एक दलित लीडर चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने जमकर उनकी तारीफ की और उनका साथ दिया। इंडिया सरकार है, उनके नेताओं को खामोश कराने की खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी तकरीर में कोशिश की। बहरहाल ओवैसी साहब का यह बयान आप हजरात की खिदमत में रखते हैं, अगरचे कि अंग्रेजी में हो, उन्होंने दिया है, लेकिन ये समाअत फरमाने के लायक है। और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद का भी बयान मुलाहिजा फरमाइएगा। These people can pay back money. How can Jamia Millia and AMU pay back money? I don't know who has told you this. And more important, madam, 29% of graduates and above in India are unemployed. And half of them do low-skilled jobs. This is for you to understand. And may I come to Jamia Millia, madam? Jamia Millia, you have no permanent vice-chancellor. Why is it that a registrar is not even qualified to hold that post? Why is it that a standing council is running the Jamia Millia? And please inquire that why 438 crores have been given HIFA, whether competent construction companies have been given or someone has been on the basis of favoritism. How is it, sir, that the present status of 100 years old Jamia Teachers Association, their office has been sealed, their body has been dissolved, there is no funds to run the university, to pay outsourcing staff, to build for building maintenance, no research grant. I demand that registrar and the standing council to be immediately removed. Now, coming to Aligarh Muslim University, there are 1,400 2 minutes. AMU daily wage workers are 1,400, temporary 1,559. Why don't you regularize them? And why are you not giving separate funds, Honorable Minister Garu, to the AMU branch at Murshidabad, in Mallapuram, and in Kishanganj? You want it to be closed? Madam, as of July 2023, the share of ST-OBC in senior professors is even lower. I'm giving you figures, madam. In central universities, there are 66.29 general teaching staff. SC, ST-OBC only 30%. NIT 67%. 33% ST-OBC. In IIT, 84.5 general category. SC, ST-OBC 14%. IIM 86.83%. And in general 11%. Who's responsible, sir? You are running the government 10 years. You are running the 10 years. And lastly, madam, NCERT has been given 500 crores. May I dare to say that this government has been distracted with fudging textbooks, teaching propaganda of children. You want me to sit down? You want to say on record? आप बोलेंगे, जवाब नहीं दे पाओगे, बैठो खामोश तुम। NCERT has removed the reference to Babri Masjid 2002 rights. Why should people not learn from the mistakes of past? Should our children not learn of Gujarat program, massacre of minority Muslims? Those who ignore history mistakes are bound to repeat them. It has made up history argued India's role of migrant DNA. तो नाज़रीन, सुना आपने ओवैसी साहब का बयान। उम्मीद है उनका यह बयान पसंद आया होगा। अब चंद्रशेखर आज़ाद, जो पहली मर्तबा MP बनकर दलित के बड़े नेता के रूप में वो पार्लियामेंट पहुंचे हैं, उन्होंने भी ओवैसी साहब की हिमायत की थी उनके बयान के दौरान। अब ख़ुद ओवैसी साहब के साथ उनको पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए भी देखा गया है। अब मुलाहिजा फरमाए चंद्रशेखर आज़ाद का आज एजुकेशन को लेकर पार्लियामेंट में दिया गया बयान। उत्तर प्रदेश के छात्रों की मांग है। मैं यूपी से आता हूँ, छात्र राजनीति से आया, हनुमान बेनीवाल जी छात्र राजनीति से आए हैं। हमारी ये मांग है कि शासन चुनाव बहाल कराए जाएं, जिससे कि गरीब किसान का बेटा भी नेता बन पाए, अपने हकों के लिए लड़ पाए। SC ST के उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ने की व्यवस्था कराई जाए, जिसका अभी आंकड़ा बहुत कम है। साथ साथ मेरे लोकसभा क्षेत्र नेटौर में और नजीबाबाद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाया जाए, सहारनपुर में डिग्री कॉलेज बनाया, भागोवाला में कन्या इंटर कॉलेज बनाया जाए, उसकी ज़रूरत है।
नगीना लोकसभा क्षेत्र के में नए कॉलेजों विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। साथ ही IIT और IIM की स्थापना की जाए। IIM में आरक्षण की व्यवस्था लागू करा जाए। हमारे साथी कह रहे थे करवानी चाहिए इनको, इनकी इच्छा है और होनी भी चाहिए। छात्रों को पोषण या विटामिन सप्लीमेंट भी दिया जाए और स्कूल कॉलेजों विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के रिक्त पदों को भरा जाए। जब टीचर होंगे तभी तो पढ़ाएंगे।